ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਸਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਦਦੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਖੱਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਸਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾੜਦੇ, ਸੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਸੁੱਖਾ, ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਤੇ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 8 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੱਟ ਲਾਤੀ ਆ, 2-3 ਥਾਈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸੱਟ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜ ਲਓ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਿਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਨੇ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾੜੇ, ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਟੇ? ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3-4, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SHO ਥਾਣਾ ਸਰਾਲੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਏ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਪਰਸੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆਈ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਿਸ ਆਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਸਰ ਅਗਲੀ ਬੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਮਿੰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 157 ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਰਡ 7 ਪੰਜਾਬੀ। ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ। ਨਿਊ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੀਸਾ, ਪੀਸਾ, ਊਸਾ, ਕਾਸਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ PSEB ਅਤੇ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ भेजन। आशा और पंजाब के प्राइवेट स्कूल बच्चों की शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सरकार से भी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को माता पिता अभिभावकों का और बच्चों का ध्यान रखते हुए उनकी मदद भी करनी चाहिए ताकि शिक्षा में कोई भी गैप किसी भी प्रकार का ना पड़ सके। कोविड के चलते काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बच्चे जो हैं वो भी घर में बैठे हुए हैं और फीस लेने की अगर बात की जाए तो क्या आपकी तरफ से कोई प्रोविज़न रखी गई है कि इसको माफ़ की जा सकती है फीस अगर किसी के फादर की अगर नहीं नौकरी बची हुई है इस कोविड के चलते कुछ भी साथ नहीं होती है। देखिए, इस पर कोर्ट ने भी कहा है कि स्कूलों को भी संवेदनशील होना होगा और स्कूल संवेदनशील हैं। मैं आपको ये तो एक बात कही जा रही है जो ज़्यादातर आप रासा के मेंबर में या बजट स्कूल्स हैं ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल 5-10% को तो फ्री पढ़ा ही नहीं होंगे नॉर्मल हालातों में, क्योंकि मैं पूरे इंडिया के बजट स्कूलों का लीडर हूँ तो मुझे पता है कि 8-10% को तो वैसे फ्री पढ़ा रहे हैं। और इनकी जो इस समय स्थिति है पिछले सेशन की भी मैं गारंटी से कहता हूँ 20 से 50% फीस स्कूलों की नहीं आई हुई है। तो क्या हमने मदद नहीं की हुई है? पिछले सेशन की भी 20 से 50, ये आंकड़ा है मेरे पास, मैंने एक सर्वे कराया तो कितनी बड़ी मदद तो पिछले साल की और अब भी प्राइवेट स्कूल किसी से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये जो बीच पे कुछ लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं उनको मेरी गुजारिश है कि इस तरह का काम ना करें, बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम ना करें। प्राइवेट स्कूलों का और खासकर स्टेट बोर्ड्स का या मैं कहता हूँ CBSE के जो गाँव में भी स्कूल है वो भी शुरू से जो है बच्चों की मदद करते हैं, अभिभावकों में भी मदद करते हैं। अभिभावकों को आपका ये संदेश हमारा पहुंचेगा तो वो जान ले क्या हम गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा अपना स्कूल एक बजट स्कूल है, मेरे पास 3 महीने की पिछले की फीस ही नहीं आई हुई तो हम वो मांग भी नहीं रहे। तो ये एक सहयोग ही तो है, लेकिन जो चंद लोग इस पर रोटियां सेकना चाहते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया बच्चों की शिक्षा से हम ना खेलें। गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट जो है वो भी प्रेशर डालती जा रही है स्कूलों के ऊपर। बेशक जो कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भी जो है वो भी अभी स्कूलों को ही पनिश करने की बात बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि स्कूल ही जिम्मेवार हैं, उन पर फीस ना दी जाए। क्या कहना चाहिए, कोई ऐसा पहले कोई रोड मैप नहीं बनाना चाहिए कि ताकि जो इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उसको ठीक किया जा सके? देखो, मैं बड़े विनम्र निवेदन से हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनको पंजाब पसंद भी करता है। तो प्राइवेट स्कूलों का जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ फ़ीस है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 3-3 महीनों की फ़ीस नहीं आई, तो क्या सरकार को अगर हम कहें कि 3 महीने वो पब्लिक से टैक्स ना ले तो सरकार चला के दिखा दें हमारे कैप्टन साहब। मैं हाथ जोड़कर उनको कहना चाहता हूँ
कि 3 महीने वो अपना सारे टैक्स माफ़ कर दें, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दे के दिखा दें। अगर वो दे के दिखा देंगे तो फिर उस फार्मूले से हम भी काम कर लेंगे, लेकिन पहले उदाहरण वो पेश करें तो हम उनका अनुसरण करेंगे। वो हमारे माता पिता समान हैं, वो भगवान का रूप होता है, मुख्यमंत्री राजा भगवान का रूप होता है। वो एक आदर्श स्थापित करें कि 3 महीने सारे स्टेट के टैक्स माफ़ कर दें। तो हमारी तो सारी फीस माफ़ करने की बात कही जा रही है ना, फिर अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दिखा दे, उसी फार्मूले से हम भी अपने टीचर्स को दे लेंगे। अन्यथा जो है इस समस्या का दूरदर्शिता से समाधान करें और माता पिता की भी मदद करें और हम भी मदद करें। स्कूल संचालकों के साथ बैठकर इसका और भी अच्छा बातचीत करके शिक्षा का नुकसान ना हो बातें की जा सकती हैं। स्कूल कभी किसी से दूर नहीं है, ना सरकार से दूर है ना अभिभावकों से दूर है। सर बसेस की जो किस्तें हैं, जैसे इसके प्रेसिडेंट वो किस्तें बैंक ली जा रही हैं, मुख्यमंत्री से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया कि आप किस्तें ना लो या इनको माफ़ कर दो या कम कर दो या ब्याज छोड़ दो, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो किस्तें एक अलग बात है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी भी है, तो ये एक बहुत बड़ा बोझ, बिजली के बिल भी हैं, और अगर प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब में होगा तो वो सारे टैक्सेस स्कूल पे पड़ रहे हैं। तो सरकार को, हमें तो हर चीज़ की माफ़ी की बात कर रही, मैं कहता हूँ सरकार भी तो कहीं आगे बढ़े, कुछ स्कूलों का भी तो माफ़ कर दे भाई। स्कूल्स के लिए तो 1 रुपये भी कहीं माफ़ की बात नहीं कही जा रही, और स्कूलों को ये नियम है कि आप और किसी तरीके से इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, अन्याय होगा शिक्षा के मंदिरों में, और शिक्षक का जो है ये गरिमा पे भी एक चोट है। अगर शिक्षक इस समय, मैं कहता हूँ उसको कोविड वॉरियर का दर्जा देना चाहिए स्कूल्स को, कि इन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया, जबकि इतने आंदोलन उनके खिलाफ चल रहे हैं, फिर भी वो डगमगाए नहीं हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देनी उन्होंने नहीं छोड़ी, ना छोड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्कूलों का भी मदद करें, उनके टैक्सेस में, उनकी और चीज़ों में। केंद्र सरकार भी जो उनकी कुछ किस्तें हैं, बसें जो हैं, ये एक बहुत बड़ा इसका सिस्टम है, स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा खर्चा है। तो केंद्र सरकार को भी इस पे पैकेज देना चाहिए बसेस वाले मामले में। ड्राइवर्स की तनख्वाह देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को आगे आना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल को एक पैकेज इस मामले में ज़रूर देना चाहिए। सर बसों की बात की आपने, कई ड्राइवर्स हैं जो अभी भी रेडी खड़ी लगाकर अब अपना घर का रोजगार करना चाहते हैं, क्या समझते हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए? देखो, नीसा एक ऐसी योजना बना रही है और रास्ता भी उसमें पूरा सहयोग करेगी। अभी मैंने बात की है कि जो हमारे ड्राइवर, टीचर्स, ऐसी भी स्टोरीज आई हैं कि टीचर्स केले की रेडी लगा रहे हैं। तो ये इस देश के लिए कितना बड़ा गलत एक मैसेज जा रहा है कि जिस देश में टीचर को सर्वोपरि माना जाता है। अभी हमारे जो है राष्ट्रपति टीचर्स का सम्मान कर रहे थे, और दूसरी तरफ टीचर केले बेच रहा है, मजदूरी करने को मजबूर हो गया। और आप कह रहे हैं ड्राइवर भी जो शिक्षा के लिए बच्चों को लेके आता था आज मजदूरी कर रहा है। तो इसके लिए क्या सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए मदद नहीं करनी चाहिए? प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा सकता है सर? स्कूल प्रशासन करने की नीति बना रहा है, जितने हमारे संसाधन है। देखिए, हमारे पास पैसे लोग नहीं दे रहे हैं, बसों की किस्तें, उसके बावजूद नीसा भी, रासा में भी हमने प्रपोजल रखा है कि एक अभियान हम चलाने लगे हैं जिसमें इन टीचर्स की, ड्राइवर्स की हम भी मदद करेंगे। लेकिन बिना सरकार जब तक आगे ना आए और जनता भी इस पर आगे ना आए, मैं तो ये भी कहता हूँ, कई जगह पर पुणे में एक पेरेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, उसने दूसरे बच्चे की फ़ीस देने की भी बात कही स्कूल को, कि मैं अपने बच्चे के साथ एक बच्चे की और फीस दूंगा। अगर सामर्थ्यवान अभिभावक भी सामने आए, सरकार भी सामने आए, स्कूल भी मिले, तो मैं सोचता हूँ कि हर उस ज़रूरतमंद बच्चे की मदद की जा सकती है, और वो शिक्षा में उसको, वो शिक्षा से वंचित ना रहे, उसकी सहायता की जा सकती है। ये सब मिलकर, दुख में हमें सबको मिलकर सहयोग, एक दूसरे को ब्लेम करके हम नहीं जीत पाएंगे कि नहीं जी फीस नहीं देनी, इन मामलों में भी नहीं जीत नहीं पाएंगे। फीस की बातें, ये नारा होना चाहिए कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, चर्चा उस पर होनी चाहिए, अभिभावकों की भी और सरकार की भी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 94% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਚਨਾਰਥਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
इस खुशी के मौके परिवार वालों मठियाइयां भी वंडियां गईयां। इस मौके अर्शप्रीत कौर ने दस्सिया कि उसने बड़ी मेहनत और लगन नाल यह स्थान हासिल किया है। मैनू बहुत खुशी है कि मैं बहुत वधिया नंबर लेके पास हो गई हाँ ते मेरे घर दे ते मेरे स्कूल वाले मेरे ते बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं ते मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ ते अपने फ्यूचर लिए मैं मतलब की नाम ਤੁਹਾਡਾ? अर्शप्रीत। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਨਾਕਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? मैं IAS ऑफिसर लिए अप्लाई करना है ते उसलिए मैंने कोचिंग लेनी पड़ेगी जो मैं हूँ अपनी स्टार्ट करूँगी ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट होवे। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ? बस मेहनत करो ते फल की इच्छा ना करो ते अपना पूरा 100% दो अपने एग्जाम्स के विच ते कंपैरिजन बिल्कुल ना करो, किसी ना कंपेयर बिल्कुल ना करो ते अपनी मेहनत करो। ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ DAV ਸਕੂਲ ਚਨਾਬ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। बस मैंने भी यही खुशी है भी मेरी बेटी वधिया परसेंट लेगी पढ़ के, सारे बच्चे ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। मेरा नाम तरलोचन सिंह जी। ਸਾਡੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ? 93। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖਣੇ ਹੈ? मैंने भी यही खुशी है मेरी बेटी पोती है। हाँ जी, यही नंबर ले गए। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ रुख करते हैं हरिद्वार वाल। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से जहां एक और दीवार गिर गई, वहीं दीवार गिरने के बाद आज सुबह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज आज वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मौके पर गंगा सभा के महामंत्री ने उनको अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि सोमवती अमावस्या के कारण हर की पौड़ी पर स्नान पूर्णतः बंद था। ऐसे में देर रात्रि भारी बरसात के साथ आकाश से बिजली गड़की और लगभग 3 बजे के आसपास दीवार गिरने की आवाज़ आई। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई भी श्रद्धालु दीवार के आसपास नहीं था, वरना एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि कोरोना काल के समय जिस तरह से मंदिरों पर और गंगा में स्नान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। वे प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि गंगा में स्नान और मंदिर में पूजा अर्चना के रास्ते निकाले जाएं, क्योंकि इससे कोरोना नहीं होता। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान खुल रही शराब की दुकानों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। इस दौरान मौके पर उप जिला अधिकारी श्रीमती संतोष चौहान पहुंची। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और जो भी इसका कारण होगा जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हर की पौड़ी पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों की एक धरोहर है। हमारी बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है। कल सोमावती अमावस्या भी थी। रात सुना है कि भारी बारिश की वजह से बिजली गिरी है और बारिश की वजह से भी ये बहुत बड़ा हादसा हर की पौड़ी पे हुआ है। माँ गंगा की कृपा है कि सोमावती अमावस्या पे लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भीड़ नहीं थी, बड़ा हादसा होने से बच गया। मेरी भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से यही मांग है कि कुछ दिनों बाद कुंभ मेला भी आने वाला है। बड़ा चिंता का विषय है ये कि ये इतना बड़ा हादसा उससे पहले हो गया। उससे पहले पूरे हरिद्वार का
मनसा देवी से लेकर के हर की पौड़ी तक, जितना भी भीमगोड़ा तक जितना भी कच्चा पहाड़ है, उसका सर्वे करके उसकी व्यवस्था, उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो। ये एक दुखद घटना है। हम सब लोग यहाँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वजह क्या रही है ये तो अब जांच का विषय भी है, लेकिन जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात बिजली गिरी है, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें फिर साथ लग जाती हैं, हुआ है। लेकिन ये हादसा एक दुखदाई है, हमारी आस्था का केंद्र है। इतनी बड़ी घटना घटने से सब लोग दुखी भी हैं। बस इतना है कि अब कुंभ से पहले इस कच्चे पहाड़ों का ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो। महाराज जी, हमारी आस्था सनातन धर्म में है, वेद में है, पूजा पाठ में है, कर्मकांड में है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी आस्था के केंद्र हैं वहाँ पूजा की व्यवस्था रहनी चाहिए और सरकार को उसमें छूट देनी चाहिए, ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। जहाँ पूजा है, वहाँ आस्था है, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ऐसी हमारी मान्यता है। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है, इन सारे उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय है ये, जांच पहले जांच की जाएगी कि किन कारणों से ये दीवार गिरी है, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ कहा जा सकेगा। हो सकता था और जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इसको साफ़ करने की हम लोग वो करवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाए और पहले के जैसे पूर्वज शेप में आ जाए। इसके लिए गंगा सभा से भी अनुरोध किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। किसी जन हानि या ऐसी कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन जो निश्चित रूप से एक परिसंपत्ति का नुकसान तो हुआ ही है और उस नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं। जब कोई विपत्ता आती है, आपत्ति आती है, तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन कर पूरे मंदिर बंद थे, हम लोगों ने उनकी बात को माना भी और मंदिर बंद भी किया। लेकिन जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान अब लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शन का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। तो कोरोना के डर अब के कारण अगर मठ मंदिर बंद है तो वो अन्याय है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग किया हूँ, आज भी करूँगा कि पूरे यात्रियों को आवागमन अब खोल दिया जाए, चारों धाम खोल दिया जाए। हरिद्वार के मठ मंदिर है वो खुले ही हैं, लेकिन यात्रियों का आना अब प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों के भरोसे रहता है। तो अभी हम कल भी गए थे, परसों भी गए, ऐसे मंदिर मठ है जहाँ पे पुजारियों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आरती के लिए घी और अगरबत्ती भी नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि अब पूर्णतः पूरी रूप से आप मंदिर को खोला जाए। जहाँ तक आपने कहा कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन करिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ आपको, लेकिन मंदिर को बंद मत कराइए। मंदिर पूर्णतः खुले रहें। मंदिर है, हर की पौड़ी पे लोग नहाएं, जिसके अस्थि विसर्जन के पूरी छोड़ दी जाए, उससे कहाँ कोरोना फैलेगा भाई? तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ सभी की यही कहना है कि जब आप दारू की दुकान खोलोगे, मंदिर को बंद कर रखोगे, जो आज आपदा हो ऐसी आपदाएं होती रहेंगी, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? 2:45 बजे के आसपास की ये घटना है और जो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद थे, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे बाहर पुलिस वाले हों, आसपास के होटल्स हों और ऑटो वाले, जितने भी लोग आसपास के थे, उन सभी का कहना है कि आकाशीय बिजली 2:30-3 बजे के आसपास गिरी और बहुत गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी और उसके तुरंत उपरांत जो है ये दीवार गिरने की जो है आवाज़ उनके पास आई। घटना जो समझ में आ रहा है वो आकाशीय बिजली गिरने का है और साथ ही साथ जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आप जानते हैं बाहर सड़क में अंडरग्राउंड वायरिंग और एलपीजी के कारण खुदाई का भी कार्य चल रहा है, क्या उस वजह से भी कोई मजबूती प्रभावित हुई या कोई अंदर से पानी की सीपेज हुई? अगर हुई या नहीं हुई है, मैं मानता हूं कि शायद जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे भी ज्ञात हुआ है कि
जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम नियुक्त की गई है, वो इसका जांच करेंगे और शीघ्र ही हमारे सामने वो पहलू भी आ जाएगा। लेकिन अपरेंटली यही है कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये हुआ है और इतना मैं कहूँगा कि शीघ्र ही हम इसका पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रारंभ करेंगे और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पानी की सीपेज हो, चाहे वो कोई भी और विषय हो, चाहे चट्टाने हों, उनको ध्यान में रखते हुए हम इसको और अधिक मजबूती के साथ और सौंदर्य के साथ हम इसको निर्माण करेंगे। कि सिर्फ दीवार को नुकसान पहुंचा, कोई जान माल की हानि, किसी को खरोंच तक नहीं आई है। ये माँ गंगा की कृपा है, माँ गंगा का आशीर्वाद है। मैं नहीं जानते हैं कि पूरी हर की पौड़ी का उस समय तत्कालिक जो भी है वो 37 के आसपास ही पूरा निर्माण हुआ था। हर की पौड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन 1937 के आसपास पत्थर और ये लगे थे। लेकिन समय समय पर इसकी पूरी तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर मरम्मत और मेंटेनेंस होती आ रही है और निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे सर्वे हुए थे। दीवार पूर्णतः तकनीकी रूप से मजबूत थी, लेकिन प्राकृतिक जो है कारण है और क्योंकि चट्टानों से घिरा हुआ हर की पौड़ी क्षेत्र है तो ये घटना हो सकती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में घटना घटी है। माँ गंगा का हम जो आशीर्वाद है, माँ गंगा का हम धन्यवाद करते हैं। कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इतना मैं आश्वस्ति माँ गंगा की कृपा से नहीं मानता हूँ कि अगर ये दिन में या किसी और ऐसे सोमती के नॉर्मल दिन में अगर ये घटना होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन माँ गंगा हमारे साक्षात हमारे सामने बह रही। पंडित प्रदीप पडियाल, खानदानी ज्योतिष, स्टार प्लस वाले, जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर 9854 56026 9853 19424। फोन ते घर बैठे तुरंत पाओ हर मुश्किल दा समाधान गारंटी नाल। तुहाडा खोया होया प्यार वापस आ सकदा है। विआह च रुकावट दा होना, पति ते प्रेमी दा कहने तो बाहर होना, बनदे बनदे कम्मां दा बिगड़ जाना, लॉटरी नंबर पाओ, संतान दा ना होना या फिर कहने तो बाहर होना, फिल्मी ते राजनीतिक कैरियर, कोर्ट कचहरी दे मामले च रुकावट आना, महंगे उपाय करन वालियां तो रहो सावधान। साडी पूजा तो कई लोग उठा चुके ने लाभ। हर मुश्किल दा हल पाउण लई इन्हां नंबरां ते एक बार जरूर करो संपर्क। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਾਂਤਰਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90244 70842। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जोड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना कितनी असीं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।